how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you? Hope you are all fine. And we are going to discuss a very important exercise for the board exams for class 12, indefinite integral. Okay, and there is the exercise, actually this 7.3 exercise. And the whole 7.2 solutions are there in my channel. And then you can see, I think we had conducted a live classes for solving this NCERT 7.2 exercise. And this R.D. Sharma's solutions are also being provided. Just you can see the regular classes. Just stay connected with my channel and with me as well, that all the books and all the solutions will be provided. NCERT, R.D. Sharma, and whatever the book you have and whatever the questions you have, many problems or many kinds of I think the consequences might be arise in front of you. You can ask me anytime, anywhere. Okay, so wherever just you are, just ask me anytime, and whatever the question it is, I will discuss in my channel. And very soon I am going to start JEE main advanced classes also. Okay, so I think tomorrow the first lecture, that means for this session. Okay, so I think in the first session I had uploaded some videos regarding this indefinite integral, definite integral, and after that this application of integration, just like this, increasing, decreasing. These chapters were being provided. Okay, so but the views were coming very low, that's why I had stopped this JEE main advanced classes. Now actually some students are requesting very much to start this JEE main and advanced classes. The shortcut tricks and everything will be discussed. How can you prepare this JEE mains and advanced exam level questions, that will be discussed. Various process and various things will be discussed. Okay, so just get prepared for that. JEE main and actually this advanced aspirants, just get prepared for that in my channel. Just you will be given all the conveniences, whatever actually is available, whatever the materials and whatever the books I have with me, that will be discussed. I have this Arihant books, then Syncage, and then after that this various kinds of DPPs of Disha publications. Okay, so all the things and all the actually this DPPs all I think will be provided. Just you should solve this type of questions, and I think maximum number of questions will be discussed in my channel. Just stay connected with my channel and you will see all the things and all these questions, all the types will be discussed. Okay, so just share my channel with your friends and with your classmates and tell them to join the classes. And if they will like the videos, if they like the lectures, and I know very well this video quality and this audio quality is not so good because it is my primary level, and I think I told you about these things. I am not technically sound. Okay, that's why I think many more technical issues might be arised. But I am trying my best. I am trying to give my best efforts to make you confident in my subject. Okay, and just I am trying to make you assure that in my subject, if you will actually just follow my lectures, if you will be connected with my lectures as well, then after some time you will feel that in mathematics actually this getting this more marks, securing this more marks, it is not a big deal. It is very simple. Just with respect to the other subject, it will be very simple to achieve this 90% above marks in mathematics subject as well. Okay, so if you like to solve, if you like to practice this subject, if you have the interest in this subject, then 90% above marks, it is quite possible. Okay, very simple with respect to the other subjects. Okay, so just stay connected with me. You will see all the things on all of this actually this 11, 12 studies and JEE mains and advanced studies will be provided. Okay, just I am trying in the primary level. Okay, so just keep supporting me, and after 1 year, whenever this YouTube channel will be spreaded out, okay, all over this country, then I will actually I am assuring you that all of these things and all these setups and all these things will be actually improved, okay, and enhanced also. Okay, because if you want to get the more views, if you want to get the more subscribers, then I think I know very well that this video setup and this all the things, audio quality, video quality, and this blah 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 blah,
that should be enhanced first. Okay, so I'm trying to enlarge my actually viewers. Okay, after getting this mass viewers, after getting this mass students, I will try my best to provide all these things. Okay, so thank you very much for keeping support, for your lovely support. Okay, now 7.3 एक्सरसाइज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल का आज सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि फुल सॉल्व कर लें. ठीक है, उससे पहले आपको कुछ सी चीज जो है so before starting this actually this 7.3 exercise, this okay, different questions will be there. Some properties you will have to know about these things. Okay, so at first आपको प्रॉपर्टी साइड में लिख देना है कि ये प्रॉपर्टीज, ये प्रोसीजर यहाँ पर यूज होगा, तो आप लोग लिख लीजिए. ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर वन क्या है, इफ एनी इंटीग्रल, अब अगर कोई भी इंटीग्रल ओके इज इन द फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, देन तो अगर इस फॉर्म में है तो आपको हाफ शुड बी मल्टीप्लाइड ओके, एंड 2 with the न्यूमरेटर. मतलब जहां पर भी आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को देखेंगे ओके, देन हाफ सामने लाना है और 2 ऊपर लाना है. अब लाने के बाद क्या करें, क्या होगा, लाने के बाद ये फॉर्मूला यूज होगा, 2 cos square x equals to 1 plus cos twice x, 2 sin square x equals to 1 minus cos twice x. So for using these two formulas, whenever you have sin square x and cos square expression, these two should be there. Okay, for using these formulas. तो अगर मैं sin square x और cos square x का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ अगर 2 किसी तरह इंट्रोड्यूस कर लूं, तो मैं ये दो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं. वी कैन यूज दिस फॉर्मूलास. ओके, सो ये है फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप लिखो. सेकंड टाइप, इफ एनी इंटीग्रल is in the form sin cube x और cos cube x, then आपको क्या करना है, 1/4 and 4 should be multiplied. Q should be multiplied. Okay, Q, why should I multiply this 1/4? Because we know that cos 3x equals to 3 cos x minus 4 cos cube x. ओके, ये एक फॉर्मूला है. तो यहां से अगर मैं 4 cos cube x लेके आ जाऊं, 3 cos x minus cos 3x, so that means this formula can be used. Okay, again sin 3x equals to 4 sin cube x minus 3 sin x. ठीक है, तो यहां से अगर मैं 4 sin cube x इक्वल्स टू sin 3x, जो फॉर्मूला है थोड़ा वेरीफाई कर लेना. ठीक है, मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, 3 sin x, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं. अगर cos cube x है तो 4 लाना है sin, और sin cube x है तो 4 लाना है sin, so that we can use these two formulas. ठीक है, हो गया. थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास sin x मतलब sin cos मल्टीप्लीकेशन, sin cos और cos sin और cos cos और sin sin अगर मल्टीप्लीकेशन में है, इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, then half and 2 should be multiplied. Half should be multiplied. ठीक है, half should be multiplied. क्यों?
कौन सा फॉर्मूला है हम लोग के पास, आप लोग जानते हैं 2 sin A cos B एक फॉर्मूला है, 2 cos A sin B एक फॉर्मूला है, 2 sin A sin B एक फॉर्मूला है, 2 cos A cos B एक फॉर्मूला है, 2 sin A cos A एक फॉर्मूला है। तो दैट मींस ये सब फॉर्मूलाज हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूलाज है, ये हम लोग क्लास 11th पे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को मिला होगा शायद, है कि नहीं। तो ये सब फॉर्मूलाज हम लोग को जानना है। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट मींस यहाँ पर अल्टीमेटली साइन कॉस का कोई एक्सप्रेशन अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे, कॉस साइन मल्टीप्लीकेशन में रहे, साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में रहे, कॉस कॉस मल्टीप्लीकेशन में है, देन you should use half and 2 because you can see in every formulas with this sin cos expression 2 is there, okay। तो ये 2 लाने के लिए सामने हाफ आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर आपको 2 लाना है, हो गया एकदम वेरी सिंपल। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ ये फॉर्मूलाज भी लिखते जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको 3 प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको देखना है। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस, एक के बाद एक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर साइन 3x का फॉर्मूला शायद यहां पर ये है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा करेक्शन कर दो, ठीक है। यहां से अगर 4 sin क्यूब x होता है तो यहां पर 3 sin x माइनस sin 3x, ठीक है। और यहां पर 4 cos क्यूब x इक्वल्स टू cos 3x प्लस 3 cos x। ये दो फॉर्मूला थोड़ा करेक्शन करके लिख लो, ठीक है। दो फॉर्मूला थोड़ा करेक्शन करके लिख लो, यही होगा शायद, ठीक है। आप लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है, हो गया। ये दो फॉर्मूला यूज करना है आपको, यही मेन दो है। दैट मींस आपको जहां पर भी cos क्यूब और sin क्यूब के एक्सप्रेशन दिखाई दे आपको यही फॉर्मेशन अप्लाई करना है। विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मेशन यू कांट सॉल्व, ओके। नाउ पहला क्वेश्चन हम लोग आएंगे 7.3 एक्सरसाइज। आओ पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर के एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर के एक्सप्रेशन है यहाँ पर तो दैट मींस हाफ और 2 मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस 5 dx है। तो हम लोग जानते हैं, देखो 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ट्वाइस x। तो यहाँ पर x के जगह क्वेश्चन में देखो ट्वाइस x प्लस 5 है, तो आप भी यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x के जगह 2x प्लस 5 बिठा दीजिए, 1 माइनस कॉस, यहाँ पर भी 2 इंटू ट्वाइस x प्लस 5 बिठा दो, है कि नहीं। सो दैट मीन्स हाफ 2 साइन स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस 2x, x means in place of x what should I write? This should be written, okay। So half integration 1 dx minus half integration cos ये 2 2s are 4x and plus 10 dx, where close not bracket, half integration dx, इसका आंसर कितना होता है x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन dx इसका मतलब इंटीग्रेशन मतलब ये 1 by d और ये dd कैंसिल, x होता है ना, तो दैट मींस x माइनस हाफ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x dx sin x। तो अगर cos x के इंटीग्रेशन sin x है तो cos इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, sin यही होगा, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आपको लिखना है, क्या करें। तो cos x के इंटीग्रेशन sin x है, तो यहाँ पर x के जगह ये लिखा हुआ है, तो आपको भी यही चीज लिखना है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट रहे वो आपको कहां पर लाना है, बाई में लाना है। वो कैसे आता है हम लोगों ने जो लास्ट क्लास है उसमें भी डिस्कस किया है, क्यों बाई में आता है। थोड़ा लास्ट जो है लेक्चर है वो थोड़ा देख लो, बाई 4।
ठीक है, प्लस सी, खत्म है आंसर। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x। मैंने बोला था साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में रहे तो आपको हाफ लाना है और ऊपर 2 साइन 3x cos 4x। वेरी सिंपल है कि नहीं? तो दैट मीन्स 2 साइन a cos b, फॉर्मूला साइड में लिख के रखो। 2 साइन a cos b, फॉर्मूला क्या है? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला साइड में लिख के रखो, मैंने बोला था ये सब का फॉर्मूला मैं साथ साथ में लिख के जाऊंगा। ठीक है, 2 साइन a cos b, दैट मींस साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो दैट मींस 2 साइन a प्लस b, दैट इज 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b, 3x माइनस 4x। ये ब्रैकेट मारो और dx लो, तो हाफ साइन 7x प्लस हाफ प्लस साइन माइनस x dx। तो हाफ, देखो पार्ट पार्ट कर सकते हैं, मिडिल में प्लस है तो दैट मींस पार्ट तो हम लोग कर सकते हैं। साइन 7x को एक इंटीग्रेशन में घुसा दो और सेकंड जो है उसको भी दूसरा एक इंटीग्रेशन यूज कर दो इसके ऊपर। ठीक है, तो दैट मींस हाफ साइन 7x, अच्छा इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x, माइनस कॉस x माइनस कॉस 7x बाई 7, क्योंकि मैंने बोला था कोफिशिएंट x के साथ जो रहेगा वो बाई में आएगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस x, तो यहाँ पर साइन 7x का क्या होगा? माइनस कॉस 4x होगा, माइनस कॉस 7x होगा, बाई 7 आएगा क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है। ठीक है, हो गया। फिर प्लस हाफ, अच्छा हम लोग जानते हैं साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आके ये प्लस को वो माइनस कर देगा। फिर साइन x का क्या होगा? माइनस कॉस x, है कि नहीं? प्लस c, तो यहां पर तो क्या होगा? 1/14 माइनस कॉस 7x और ये माइनस माइनस प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c। हमेशा याद रखना अंदर जो माइनस है वो बाहर आएगा। ठीक है, ये जो माइनस है ये अंदर नहीं है, बाहर है, इसलिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया। याद रखिएगा आप लोग ये सब। ठीक है, ठीक है ना। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x। यहां पर तो 3 मल्टीप्लीकेशन में है। अब 3 मल्टीप्लीकेशन वाला ये जो मैंने लिखा है कुछ देर पहले प्रॉपर्टीज, we don't have any kind of properties regarding this 3 cosine terms. We don't have the property here. We have only the formation like cos sin cos sin cos, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। बाकी यहाँ पर तो 3 है, कैसे करें? ठीक है, तो जो 3 है ना वो हम लोग को पहले क्या करना है? पहले फर्स्ट दो चूज करना है। अब हम लोग सर पहला 2 ही चूज करना है क्या? नहीं, यू आर नॉट सो बाउंडेड टू चूज दिस फर्स्ट 2 टर्म्स। आप लोगों को फर्स्ट 2 टर्म्स ही चूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट और लास्ट भी चूज कर सकते हैं और ये दोनों भी आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बट जनरली हम लोग सीरियल वाइज जाना पसंद करते हैं, इसलिए पहले 2 को हम लोगों ने चूज कर लिया। तो ये तो हो गया ना कॉस कॉस, सोच लो ये नहीं है टर्म, दिस टर्म इज एब्सेंट। ओके, ये टर्म यहाँ पर नहीं है, तो क्या करें? कॉस कॉस मल्टीप्लीकेशन में है तो हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 2x cos 4x लो ये, और यहाँ पर cos 6x अलग से बैठा रहेगा, वो अकेला है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? 2 cos a cos b, इट मींस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो दैट मींस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, बस हो गया। ब्रैकेट में रख दो पूरा, और cos 6x dx अलग से रखो, ये फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लो। तो यहां पर क्या आएगा? हाफ cos 6x प्लस cos माइनस 2x cos
6x dx। अब ये जो cos 6x है अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई, दैट मींस cos स्क्वायर 6x dx, इसके साथ ये मल्टीप्लाई तो क्या होगा, फिर से इंटीग्रेशन देके पार्ट कर दो, cos माइनस ट्वाइस एक्स इंटू cos 6x dx। देखो तो ठीक है कि नहीं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को मैंने पार्ट कर दिया, और हाफ तो होल मल्टीप्लाई था तो हाफ को भी साथ साथ पार्ट कर दिया, है कि नहीं। अच्छा, सो यहां पर तो फिर से cos स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया। अगर cos स्क्वायर का एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, कुछ देर पहले मैंने दिखाया, सामने हाफ लाना है, तो पहले तो हाफ पहले से ही था, 1/4 हो जाएगा, तो इधर 2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस हाफ, यहां पर फिर से cos मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो फिर से हाफ लाना है, तो 1/4 2 cos। अच्छा, यहां पर ये जो माइनस ट्वाइस एक्स है, ये माइनस क्या रहेगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, कोसाइन का एक्सप्रेशन है, माइनस साइन विल बी एब्जॉर्ब। अगर अंदर रहे माइनस तो एब्जॉर्ब हो जाते, बिकॉज दिस कोसाइन फंक्शन इज द इवन फंक्शन। तो अगर आपको ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में जानना है तो क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन चैप्टर में जाकर थोड़ा देखिए, प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ क्या हुआ है। तो cos 2x cos 6x dx, ओके, ठीक है ना। अब फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला, अच्छा यहां पर देखो, फर्स्ट वाला 2 cos स्क्वायर 6x। अच्छा, हम लोग तो फॉर्मूला इसका जानते हैं, 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x। तो यहां पर अगर 2 cos स्क्वायर 6x हो जाए, देखते 6 मल्टीपल हो गया, ओके, तो यहां पर 1 प्लस cos, ये भी 6 मल्टीपल हो जाएगा, 12x हो जाएगा नहीं। अगर इस साइड में एंगल 6 गुना बढ़ गया तो उस साइड में भी एंगल 6 गुना ही बढ़ेगा, तो ट्वाइस एक्स है तो 6 गुना बढ़ेगा तो क्या होगा, 12x होगा। तो दैट मींस 2 cos स्क्वायर 6x, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/4, ये फॉर्मूला तो कुछ देर पहले मैंने दिखाया है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b dx, है कि नहीं। तो बस, तो यहां पर 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 cos, ये माइनस 4x होगा, है कि नहीं, माइनस 4x dx। देखो तो ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। बस, तो यहां पर 1/4 इंटीग्रेशन dx तो x होता है, प्लस 1/4, अच्छा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहां पर तो 12x है, तो आप भी sin 12x ही लिखेंगे, लेकिन बाई एक 12 आएगा, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट यहां पर 12 है, जो कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड में आएगा, फिर प्लस 1/4, ये भी sin 8x बाई क्या आएगा 8, ये भी 1/4, और cos के अंदर माइनस है, एब्सॉर्ब्ड, तो sin 4x बाई 4 प्लस c। बस हो गया आंसर, है क्या नहीं, हो गया ना आंसर, वेरी सिंपल, है क्या नहीं, ओके। फिर उसके बाद क्यूब का आते हैं, ठीक, क्यूब वाला कैसे करेंगे वो भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं, क्यूब वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉज करो, पॉज करके थोड़ा देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन क्यूब ट्वाइस एक्स प्लस 1 dx। अब साइन क्यूब का एक्सप्रेशन है, तो मुझे क्या करना है, 1/4 साथ में मल्टीप्लाई करना है, 1/4 इधर 4 साइन क्यूब ट्वाइस एक्स प्लस 1 dx, है क्या। तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर साइन 3x का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, दैट मींस यहां से 4 साइन क्यूब x का फॉर्मूला क्या बनता है, 3 साइन x माइनस साइन
3x, ये है फॉर्मूला ओरिजिनल, ठीक है। अब x के जगह ये लिखा हुआ है, तो आप भी x के जगह हर जगह यही लिखेंगे, है कि नहीं? तो क्या आएगा 1/4, इसका फॉर्मूला क्या बन गया 3 sin x, दैट मींस 3 sin x, x की जगह twice x plus 1, ओके, माइनस sin 3x, दैट मींस 3 this one twice x plus 1, ओके। So 1/4 integration 3 sin twice x plus 1 dx minus 1/4 sin 6x plus 3 dx। देखो तो ठीक है कि नहीं? 1/4 को मैंने होल मल्टीप्लाई था ना, पार्ट पार्ट कर दिया, इसके साथ पार्ट, इसके साथ पार्ट, ठीक है कि नहीं? तो बस यहां पर ये 3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं आप, 3/4। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, x के जगह क्या आएगा twice x plus 1, हो गया। बाई कुछ आएगा क्या, ऑब्वियसली आएगा, x के साथ कोफिशिएंट 2 है तो 2 आएगा, माइनस 1/4, यहां पर माइनस कॉस 6x plus 3, बाई क्या आएगा 6 आएगा प्लस c, तो यहां पर अल्टीमेटली क्या आएगा 3/8 माइनस कॉस twice x plus 1, ये माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x plus 3 plus c, ठीक है। क्यूब का एक्सप्रेशन है, आई तो सकता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ठीक है, हो गया है, थोड़ा मार्क कर लो उसको, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब। अच्छा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने नहीं लिखा है, तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखा है। एक था साइन स्क्वायर, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का एक्सप्रेशन, सेकंड था सिर्फ साइन क्यूब एक्स का एक्सप्रेशन, या फिर कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब का भी हो सकता है। थर्ड है साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन साइन मल्टीप्लीकेशन, कॉस कॉस मल्टीप्लीकेशन, बट यहां पर तो क्यूब है, क्यूब होने से तो एक भी प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई नहीं होता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सिर्फ साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों पैटर्न का मल्टीप्लीकेशन अगर रहे तो मुझे हाफ लाना है और उधर 2 लाना है, ठीक है। अब क्यूब होने से क्या होगा रे भाई, है? इससे ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये आप थोड़ा नोट देखिए, आप ये जो स्ट्रक्चर है आप लिख सकते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स होने से क्या होगा, हाफ और 2 लाना है। तो अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हुआ तो इधर भी स्क्वायर लाना है, उधर भी स्क्वायर लाना है, ठीक है। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रहे मल्टीप्लीकेशन में, तो मतलब सामने आपको 1/4 लाना है, ऊपर आपको 4 लाना है। अगर क्यूब है, अगर क्यूब है आपके पास क्यूब, तो इधर भी क्यूब लाना है और उधर भी क्यूब लाना है। अगर पावर 4 है, अगर पावर 4 है तो इधर भी आपको 4 लाना है, उधर भी आपको 4 लाना है, ठीक है। ये मतलब एक शॉर्टकट मेथड है, इसे आप कर सकते हैं। सो दैट मींस ऊपर यहां पर भी 2 क्यूब लाना है, इधर भी 2 क्यूब लाना है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। So that means 1/8 whole thing 2 sin x cos x whole cube dx। 1/8 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, sin twice x whole cube dx। So 1/8 sin cube twice x dx। ओ फिर से sin क्यूब का एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर, तो सिर्फ साइन क्यूब का एक्सप्रेशन आने से प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने लिखा है, देखो कुछ देर पहले। आपको सामने हाफ लाना है और उधर 2 लाना है, दैट मींस 1/16, सॉरी हाफ नहीं 4 लाना है, 1/4 और 4 लाना है। तो दैट मींस ये एक फॉर्मूला बन गया। देखो कुछ देर पहले मैंने 4 साइन क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला लिखाया था, 4 साइन क्यूब एक्स, इसका फॉर्मूला क्या था 3 sin x माइनस साइन 3x, ये था ना फॉर्मूला। तो यहां पर x की जगह यहां पर ट्वाइस x है, तो आप भी ट्वाइस x ही लिखेंगे। सो दैट मींस 4 sin क्यूब ट्वाइस x, मतलब यहां पर 2 मल्टीपल हो गया, तो हर जगह आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो यहाँ पर 2 साइन 2x ट्वाइस एक्स माइनस साइन 3x है, 2 मल्टीप्लाई कर दो 6x हो जाएगा। हर जगह आपको 2 मल्टीप्लाई करके जाना है। देखो ये x ट्वाइस एक्स हो गया, ये थ्राइस एक्स 6x हो गया। सो दैट मीन्स 3 साइन ट्वाइस एक्स माइनस साइन 6x dx। सो 1/16 पार्ट कर सकते हैं हम लोग। अब तो ओपन है, हम लोग आराम से पार्ट कर सकते हैं। 1/16 साइन 6x dx हो गया है कि नहीं? ठीक है, बस ये जो 3 कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। 1/16 मतलब 3/16 साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस x। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस 3x है कि नहीं? तो माइनस कोस 3x, बट बाई में एक 3 आएगा क्योंकि कोफिशिएंट यहां पर 3 है x के साथ। फिर माइनस 1/16 यहां पर माइनस कॉस 6x/6 प्लस c। दैट मींस 3 कैंसिल, माइनस 1/16 कॉस थ्राइस x माइनस 96, यस 96 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस c। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 9 जाएंगे। cos x dx बाई क्या था? cos x dx बाई 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। इसको कैसे करना है? देखो ये 7.3 एक्सरसाइज जो है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सब्स्टिट्यूशन का भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको नॉर्मल मेथड से भी मिलेगा, है कि नहीं? तो आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि कौन सा। ये तो ऑब्वियसली अभी तो जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लिखा है वो एक में भी ये प्रॉपर्टी सेट नहीं होता है, लेकिन ये दूसरा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहां पर एक काम कर सकते हैं, cos x प्लस 1 माइनस 1 प्लस cos x ऐसे कर सकते हैं। देखो क्यों मैंने प्लस 1 माइनस 1 ऐड किया है, मैंने देखा अच्छा यहाँ पर प्लस 1 ऐड करने से ये वाला एक्सप्रेशन बाय दिस कैंसिल होता है ऊपर नीचे है। तो थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने ये चीज किया है, 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x dx माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x dx। तो ये कैंसिल, सिर्फ आपके पास dx रहेगा और इधर 1 प्लस cos x है ना, है कि नहीं? तो मुझे बोलो तो 1 प्लस cos ट्वाइस x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos ट्वाइस x 2 cos स्क्वायर x, ये है ना फॉर्मूला ओरिजिनल। तो अगर यहां पर 2 ना रहे तो यहां पर बाई 2 होता है, सब मल्टीपल फॉर्मूला प्लस 11। 1 प्लस cos x मतलब 2 cos स्क्वायर x बाई 2, दैट मींस dx बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो पहला वाला तो यहां पर x ही होगा, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। तो दैट मींस x माइनस हाफ। अब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x फॉर्मूला तो डायरेक्ट है 10x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है 10x। तो यहां पर तो x मतलब x बाई 2 है, तो आप भी 10x ऐसे लिखेंगे। अब कोफिशिएंट कौन सा है x के साथ? हाफ, तो यहां पर बाई हाफ भी होगा। ठीक है, सो दैट मींस x माइनस 2 तो शायद कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, सो सिर्फ 10x बाई 2 प्लस c, दैट इज द आंसर। ठीक है, हो गया, हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पॉज करो और पॉज करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि sin टू दी पावर 4x dx। अरे sin टू दी पावर 4, मुझे तो sin स्क्वायर का पता है। मैंने लिखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि sin स्क्वायर x रहने से आपको हाफ और 2 मल्टीप्लाई लेना है, मतलब
ऐसा था प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन स्क्वायर एक्स ऐसा होने से हाफ लाना है और उधर 2 लाना है। अब साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर आएगा, साइन टू द पावर 4 मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो यहां पर भी आप क्या लाएंगे, होल स्क्वायर लाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। दैट मींस 1/4 4 साइन टू द पावर 4x dx। मतलब मेन प्रॉपर्टीज ये 3 प्रॉपर्टी ही है, उसके ऊपर बेस करके आप सॉल्यूशन बनाएंगे। सो दैट मींस 1/4 2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx 1/4। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, 1 माइनस कॉस ट्वाइस है होल स्क्वायर dx। तो 1/4 ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है नहीं dx। तो दैट मींस 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/4 2 cos twice x dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर twice x dx। तो ये तो 1/4, इसका आंसर तो x हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आके ये 2 4 कट होगा, हाफ cos twice x रहेगा। cos twice x का क्या होगा, sin twice x होगा। इंटीग्रेशन cos x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x का फॉर्मूला होता है sin x। तो cos twice x का क्या होगा, sin twice x होगा। बाई एक 2 आएगा क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट यहां पर 2 है, प्लस 1/4। ओ इस इंटीग्रेशन में फिर से देखो एक cos स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया। तो cos स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया, दैट मींस आपको हाफ लाना है और उधर 2 cos स्क्वायर twice x dx आना है। ठीक है कि नहीं? सो 1/4x माइनस 1/4 साइन twice x प्लस 1/8। अब ये वाला जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x का हम लोग जानते हैं, यहाँ पर 1 प्लस cos twice x। अब यहाँ पर अगर 2 cos स्क्वायर twice x होगा, दैट मींस ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, डबल होगा, twice x के 4x हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, वहां पर भी 2 मल्टीप्लाई है, दैट मींस 1 प्लस cos 4x dx। दैट मींस x/4 माइनस 1/4 sin twice x प्लस 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x dx। है कि नहीं? ठीक है, तो ठीक है ना। दैट मींस x/4 माइनस 1/4 sin twice x प्लस 1/8, इसका क्या होगा, x ही होगा, प्लस 1/8 sin 4x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 4x का sin 4x होगा, बाई 4 प्लस। अब थोड़ा यहाँ पर x/4 प्लस x/8 माइनस 1/4 sin twice x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। ये होगा आपका फाइनल आंसर। अभी इसका थोड़ा प्लस करके थोड़ा उसको ये नाटक कर लो, थोड़ा इसका नाटक कर लो, कितना सुंदर घूम घाम कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई चिंता का कोई बात नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 cos टू दी पावर 4 का है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करेंगे। ठीक है, एक ही पैटर्न है, एक ही तरीके से आपको करना है कि नहीं? फिर ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 जाएंगे। ये पॉज करो, वीडियो को पॉज करके फिर लिख लो। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का तो यही फायदा है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट रेगुलर क्लासेस में टीचर चला जाता है, सामने आप लोग रहते हैं पीछे, है कि नहीं? यहाँ पर जो मर्जी आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करें, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये कैसे करें? देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं। क्लास 10 का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। तो यही हम लोगों ने यूज किया, साइन स्क्वायर एक्स मतलब वो कॉस स्क्वायर एक्स को उधर लेके चले गए,
1 minus cos square x. So a square minus b square, that is 1 minus cos x, 1 plus cos x whole by 1 plus cos x dx. Cancel हो गया. That means dx minus cos x dx. पार्ट पार्ट कर दो. x minus sin x plus c. ये होता है आंसर, है कि नहीं? फिर 13 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने करके दे दिया है. ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, cos twice x minus cos twice alpha by cos x minus cos alpha. ये शायद लेक्चर नंबर 3 है. लेक्चर नंबर 3 का लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर दिया है. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में cos x minus sin x, cos x minus sin x by 1 plus sin twice x, 1 plus sin twice x. तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिले, आप लोग देखेंगे कि फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं. यहाँ पर तो फॉर्मूला तो sin twice x का तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यूज करेंगे. बाद में सोचा जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे होगा. 1 प्लस sin twice x का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, 2 sin x cos x. फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसका तो रास्ता तो और कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पर, और भी देखने में और भी डर लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उसको इजी करने का रास्ता भी है आपके पास, है कि? जैसे ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 1 को हम लोग cos x माइनस sin x, ये 1 को हम लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यदि लिखें, आपको कोई मतलब प्रॉब्लम है? हाँ, मैं देख रहा हूं कि अरे अगर यहाँ पर 1 की जगह ऐसे लिख लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बन जाता है. दैट मीन्स sin x प्लस cos x होल स्क्वायर. अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं, sin x प्लस cos x इक्वल्स टू z, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल्स टू dz. आ रहा है कि नहीं? देखो तो एकदम न्यूमरेटर पार्ट एकदम स्ट्रक्चर बन रहा है. देखो तो दैट मींस dz बाय sin x, सॉरी dz बाय, इसको तो मैंने z ले लिया, तो दैट मींस z स्क्वायर. ठीक है ना? तो z स्क्वायर, उसको अगर मैं ऊपर लिखूं z टू द पावर माइनस 2, दैट मींस z टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c. Thus that means sin x plus cos x whole to the power minus 1 by minus 1 plus c. ये होगा आपका फाइनल आंसर. जेड की जगह आपको तो बिठा देना है ना, जो आपने एज्यूम किया है वही आपको बिठा देना है कि नहीं? फिर क्वेश्चन नंबर 14 भी जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ये तो 14 है, ये तो 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 जाएंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के tan cube twice x, tan cube twice x into sec twice x dx. वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, कैसे सॉल्व करूं उसको? हाँ? अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना चाहूं, हाउ कैन आई यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर? कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सोचो. और सब डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूलाज है सेक और टेन रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन सेक और टेन रिलेटेड है, तो आपको सोचना भी है सेक और टेन के ऊपर ही, आप साइन कोस के ऊपर नहीं सोचेंगे. अगर आपके पास सेक टेन रिलेटेड कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, वो थोड़ा सोचिए. सोचने के बाद देखिए, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? देखो टेन क्यूब एक्स है ना, उसको टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन स्क्वायर ट्वाइस एक्स इंटू टेन ट्वाइस एक्स सेक ट्वाइस एक्स डीएक्स. क्यूब को तोड़ दिया मैंने, और ये जो टेन स्क्वायर एक्स है उसके जगह मैं सेक स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं, और उधर ये जो पार्ट है सेक ट्वाइस एक्स टेन ट्वाइस एक्स डीएक्स ऐसे लिख सकते हैं.
क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, है। तो अगर मैं उसके बाद सेक ट्वाइस एक्स को z लूं, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पर ट्वाइस एक्स है, तो आप ट्वाइस एक्स ही लेंगे, है नहीं। तो सेक ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन सेक ट्वाइस एक्स टेन ट्वाइस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स का एक डिफरेंशिएशन होगा, उसका 2 आएगा, dx इक्वल्स टू dz। तो यहां पर अगर मैं 2 सामने लेके आ जाऊं, 2 सेक ट्वाइस एक्स टेन ट्वाइस एक्स dx इक्वल्स टू dz, है कि नहीं। तो यहां पर देखो सेक ट्वाइस एक्स टेन ट्वाइस एक्स dx इक्वल्स टू dz बाई 2, क्योंकि यहां पर देखो फॉर्मूला के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेड है। आपको डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला पक्का मालूम है तो आप ये सब स्ट्रक्चर जो है खुद ही बना सकते हैं, है कि यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टेन क्यूब एक्स है। अच्छा, टेन क्यूब मतलब लेके तो हम लोग क्या करें, क्यूब ये पूरा पावर ही मतलब यहाँ पर गड़बड़ी है, ठीक है ना। दैट मींस द फोर्थ पावर, क्यूब को नहीं रखना है आपको। क्यूब को सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्यूब को हम लोग क्या करें, क्यूब को हम लोगों ने स्क्वायर और पावर 1 में तोड़ दिया, ठीक है। फिर तोड़ने के बाद हम लोगों ने देखा है कि सेक एक्स टेन एक्स का एक एक्सप्रेशन यहाँ पर पैदा हो रहा है, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, यहाँ पर तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, और टेन स्क्वायर एक्स को भी हम लोग सेक एक्स के एक्सप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं आराम से, तो वही मैंने सोचा है यहाँ पर, ठीक है। तो सेक ट्वाइस एक्स टेन ट्वाइस एक्स dx मतलब dz बाई 2, मतलब ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसके जगह में सिर्फ आपको कौन सा लिखना है, dz बाई 2, और यहां पर ये z स्क्वायर माइनस 1 बस हो गया। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन z स्क्वायर dz माइनस dz होल ब्रैकेट बाहर एक हाफ रहेगा, बस हो गया। फिर इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखिएगा, जो जिसका चेहरा खराब होता है देखने में, जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा खराब होता है ना, उसी को ही मैक्सिमम टाइम 99% केस सब्स्टिट्यूशन जो है उसी को ही किया जाता है। तो जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी टेन क्यूब एक्स का चेहरा खराब था, वो टेन क्यूब एक्स से ही हम लोगों ने यहाँ पर रास्ता निकाला है सब्स्टिट्यूशन का। तो हाफ जेड क्यूब बाई 3 और इधर माइनस जेड, हाफ होगा एक प्लस, तो 1/6 जेड क्यूब। अच्छा, जेड मैंने क्या लिया था, सेक क्यूब ट्वाइस एक्स माइनस हाफ सेक ट्वाइस एक्स प्लस सी, बस हो गया, आंसर निकल गया, है क्या नहीं है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बाकी जो है बीच बीच में वो आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क करके आप लोग मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हो तो मैं करके दे दूंगा, ठीक हो। cos ट्वाइस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला अगर किसी भी जगह फॉर्मूला आपको यूज करने का मौका मिले, फॉर्मूला आप लोग पहले यूज करेंगे। cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर 2 साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। तो बाई cos स्क्वायर एक्स dx, तो ये cos स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, by cos square x dx. That means 1 by cos square x dx. That means sec square x dx. That means 10x plus c. Sec square x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 10x, और क्या, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया है। जो रेगुलर लेक्चर्स है दैट मीन्स जो हम लोगों ने किया था ना, कम से कम तो 8 लेक्चर्स इंटीग्रेशन से हो गया। जिसने ये पूरा रेगुलर लेक्चर्स देखा है तो आप लोगों ने शायद देखा होगा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हम लोगों ने कर लिया है, ये कॉस क्यूब एक्स, सॉरी, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 19 तो हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप दो प्रोसेस में कर सकते हैं, देख लेते हैं कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। 20 इंटीग्रेशन cos ट्वाइस एक्स बाई cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x dx। cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला cos, ये होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी है सर, यस होल स्क्वायर है, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो दैट मीन्स a प्लस b और इधर a माइनस b डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो कैंसिलेशन करेंगे तो यहां पर रहेगा cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहेगा आपके पास, है नहीं? तो यहां पर एक काम आप कर सकते हैं, लेट cos x प्लस sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x को आप z ले सकते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, और बाहर तो आपको dx तो देना ही है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस आ गया ना पूरा न्यूमरेटर। देखो तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन, ये पूरा जगह आपको dz लिखना है बाई z। दैट मींस आपको डिनोमिनेटर में अगर कोई भी किसी भी टाइम अगर लिनियर एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे, dz बाई सम लिनियर एक्सप्रेशन, dx बाई सम लिनियर एक्सप्रेशन, देन यू शुड यूज log mod z। जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना वही एकदम छाप के लिख देना है यहाँ पर, log mod z। z मतलब मैंने यहाँ पर sin x प्लस cos x प्लस c ले लिया, ठीक है। तो 20 हो गया। फिर (21) साइन इनवर्स cos x dx। ठीक है, कैसे कर सकते हैं उसको? सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो तो हम लोग क्लास जूनियर क्लास में एक चीज तो हम लोगों ने सीखा था कि cos थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर x है, ऐसे सीखा था ना हम लोगों ने। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर सिर्फ रहता है पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो पार्ट कर देते हैं, पाई बाई 2 dx एक पार्ट, x dx एक पार्ट। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन dx माइनस, ये तो पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 दैट मींस 2 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, दैट मींस पाई बाई 2 x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, है कि नहीं? ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 भी हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लेक्चर नंबर 8 में कर लिया हम लोगों ने, लेक्चर नंबर 8 इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8, ठीक है। फिर 23 भी हम लोगों ने कर लिया है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23, ये भी लेक्चर नंबर 7 उसमें कर लिया है, ठीक है। थोड़ी करते जाओ, सब कुछ कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। देखो तो आपको अगर लिंक चाहिए मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 का। फिर लेक्चर नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है।
24 क्या है, e to the power x 1 plus x by cos square x e to the power x। ये तो देखो, ये देखने में ही तो बहुत घटिया लग रहा है। यहाँ पर चेहरा सबसे ज्यादा खराब किसका है, e to the power x का, या फिर 1 plus x का, या फिर cos square तो छोड़ो ही यहाँ पर, या फिर x e to the power x का। मुझे तो यहाँ पर x e to the power x का चेहरा ही थोड़ा खराब लग रहा है कि नहीं? तो देख लेते हैं, एक चेक कर लेते हैं यहाँ पर x e to the power x का सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर मैं z लूं क्या होता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या, ठीक है, कर चेक तो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो u भी हो गया, तो u ddx ऑफ b, यहाँ पर ddx तो होगा नहीं, प्लस v इंटू ddx ऑफ x इक्वल्स टू dz। इट मींस x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो लिखो e टू द पावर x, ठीक है ना, dx तो रहेगा प्लस e टू द पावर x, और d ऑफ x मतलब dx, और इधर dz। तो दैट मींस x, अच्छा यहाँ पर e टू द पावर x अगर मैं कॉमन लूं x प्लस 1, dx भी कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं ना, वो देखो पूरा आ गया। सो दैट मींस dz बाई cos स्क्वायर z, दैट मींस sec स्क्वायर z dz। तो 10z प्लस c, दैट मींस 10x e टू द पावर x प्लस c। देखो तो, मतलब आप लोग ये चीज थोड़ा समझ के रखिए कि अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मिलने के बाद आप लोग देखेंगे कौन सा वाला एक्सप्रेशंस यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पेचीदा है, दैट मींस देखने में खराब लग रहा है, और वही एक्सप्रेशंस को 99% केस में सब्स्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 इज कंप्लीटेड, okay, in one day, in one lecture, okay. So in the next lecture we will solve the R.D. Sharma questions also, 19.9, okay, 19.9. This exercise is very, very important, and on the basis of this 7.3, 19.9 exercise is based, okay. But we will solve some reference questions, some very important board level questions from this 19.9 exercise, and entrance level questions also. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड पुश द बेल आइकन also, so that whenever this new videos and new lectures will be uploaded in my channel, you will get the notification as well, okay. Thank you very much for joining my classes. Jai Hind।